So let us start with our new topic. How do we control the fire? Right, fire को कैसे control करेंगे? You must have seen or heard of the fire breaking out in the homes, shop and factories. If you have seen such an incident or accident, write a short description in your notebook. Also share the experience with your classmate. अभी देखो कहीं पर आग लग जाती है, ये कोई अच्छा इंसिडेंट या एक्सपीरियंस तो होगा नहीं किसी के लिए, राइट. हियर इन द पिक्चर यू आर सीइंग हाउ अ फायर फाइटर इज़ फाइटिंग विद द फायर विद द हेल्प ऑफ द ट्यूब्स विद द वाटर, extinguishing the fire by throwing water with high pressure. Now, does your city or town have a fire brigade station? जैसे पुलिस स्टेशन होता है, हॉस्पिटल होती है, वैसे ही बिग सिटीज़ में ब्रिगेड स्टेशन, फायर ब्रिगेड होती है. कहीं पर भी अचानक से आग लग जाए तो उसको कैसे पुट ऑफ करना है, उसके लिए एक पूरी ब्रिगेड होती है, राइट. सो व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाट डज it do? It pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature, and this prevents the fire from spreading. Water vapors also surround the combustible material, helping in cutting off the supply of oxygen, that is air, and so the fire is extinguished. You have learned that there are 3 essential requirements for producing the fire. Can you list these requirements? They are fuel, air and heat. अभी फ्यूल तो आपको पता है, ईंधन. एयर टू सप्लाई द ऑक्सीजन. जब तक ऑक्सीजन होगा तब तक कोई भी चीज़ जलेगी. अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो चीज़ जलना बंद हो जाएगी. एंड द हीट. हीट क्यों चाहिए? क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन होगा तभी तो कोई एक चीज़ जलेगी. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि पेपर को जलाना है तो सिर्फ फ्लेम के बाजू में से ही पेपर को पास करोगे तो कैच कर लेगा फायर को, राइट. और प्लास्टिक की स्केल को थोड़ी देर फ्लेम के बीचों बीच पकड़े रखोगे तब जाके वो पकड़ेगा. सो हीट इज़ रिक्वायर्ड, राइट. सो फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग 1 और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स. तो आग अगर बुझानी है तो ये 3 रिक्वायरमेंट में से किसी एक चीज़ को निकाल दो तो फायर अपने आप बुझ जाएगी. जैसे फ्यूल, कहीं पर से भी ईंधन उसको मिल रहा है जलने का, कंबस्टेबल मटेरियल, वो हटा लो तो बुझ जाएगी. या तो उसका ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दो तो कट हो जाएगा. और या फिर पानी डालो ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा तो वो चीज़ जलना बंद हो जाएगी. तो पानी जब हम डालते हैं हाई प्रेशर से तो यही होता है कि किसी भी चीज़ का एक तो ऑक्सीजन के साथ उसका कट ऑफ हो जाता है और उसका हीट लेवल जो है वो नीचे आ जाता है पानी की वजह से, राइट. जिसकी वजह से वो फिर अपना इग्निशन पॉइंट पे नहीं पहुंच सकती और वो चीज़ बंद हो जाती है आग, राइट. The most common fire extinguisher is water, but water works only when the things like wood and paper are on fire. If electrical equipment is on fire, water may conduct electricity and harm those trying to douse the fire. Water is also not suitable for the fires involving oil and petrol. Do you recall that water is heavier than the oil, so it sinks below the oil and the oil keeps burning on the top. For fires involving electrical equipments, the inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best. Materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. Carbon dioxide being heavier than the oxygen covers the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and the oxygen is cut off, the fire is controlled. The added advantage of carbon dioxide is that in most cases it does not harm the electrical equipment. How do we get the supply of carbon dioxide? It can be stored at higher pressure as a liquid in the cylinder. In what form is the LPG stored in the cylinders? When the release from the cylinder, carbon dioxide expands enormously in volume and cools down, so it is not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. That is why it is an excellent fire extinguisher. Another way to get the carbon dioxide is to release a lot of dry power of chemicals like sodium bicarbonate
और पोटाशियम बाइकार्बोनेट नियर द फायर। दिस केमिकल्स गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एक सिलेंडर में हम उसको भर के रखते हैं, जैसे ये आपको बॉटल दिख रही है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एकदम प्रेशर से भरा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी वही काम करता है जो पानी आग के ऊपर करती है, राइट। अभी आग बुझानी है तो पानी तो ठीक है, वो कब काम आएगा, जब हम कोई लकड़े या पेपर से पे आग लगी होगी तो उसको बुझाने में काम आएगी। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिकल सामान के ऊपर आग लगी हुई और आप पानी डालोगे तो आग बुझने के बजाय शॉक के डेंजर बढ़ जाएंगे, राइट। तो फायर से आप शायद बच सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रिकल शॉक से फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं पर भी आग लगी हो अगर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की वजह से, तो आपको उसको बुझाना है तो पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। वी विल यूज़ दिस कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर। जब ये नोज़ल को हम ब्रेक ओपन करते हैं तो वो एकदम प्रेशर से फैल जाता है और ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाता है फायर बर्निंग मटेरियल के साथ में और वो आग बुझ जाती है, राइट। तो ये याद रखना है हमें कि जब भी आग लगे और इलेक्ट्रिकल सामान की वजह से या इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से, तो हमें पानी से आग नहीं बुझानी है। वी विल ऑलवेज यूज़ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ टाइप्स ऑफ कंबस्टन, कितने टाइप के कंबस्टन्स होते हैं। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और ए गैस लाइटर नियर अ गैस स्टव इन द किचन। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टव। What do you observe? Do not handle the gas stove yourself. Ask your parents to help. हमेशा टीचर या पेरेंट की प्रेजेंस में ही ऐसा एक्टिविटी करना है, राइट। नाउ ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और ए गैस लाइटर नियर द गैस स्टव इन द किचन। जिस चीज़ से हम लोग गैस जलाते हैं ना, या माचिस, राइट, एक बर्नर होता है हमारे पास, राइट। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टव। गैस का नॉब ऑन करेंगे तो गैस निकलना शुरू हो जाएगा उसमें से, राइट। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस द हीट एंड लाइट। सच कंबस्टन इज़ नोन एज रैपिड कंबस्टन। उसको एक सेकेंड नहीं लगती है। अगर आपने देखा होगा गैस स्टव के नॉब को ऑन करते और एक ही बार लाइटर से टच करते हो तो आग पकड़ लेता है। दिस इज़ नोन एज रैपिड कंबस्टन। Now there are substances like phosphorus which burn in air at the room temperature. The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called the spontaneous combustion. Spontaneous combustion मतलब आपने कहीं भी किसी को कुछ आग वाग देने की कोशिश नहीं की है, राइट, और अचानक से आग लग जाती है। जैसे फास्फोरस जो है वो हवा के संपर्क में आने से सीधा आग पकड़ लेता है, तो उसको हमेशा लिक्विड केरोसिन में रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ही ना आए, राइट। तो अचानक से जो चीज़ आग पकड़ लेती है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टरस फायर्स इन द कोल माइंस। जहाँ पर से कोयले की खान होती है, राइट, उस पर हल्की हल्की पाउडर फॉर्म में भी मिलती है कोल हमको। अगर उसको ज़रा सा भी कहीं से भी आग जैसा तिनका भी हीट मिल जाएगी तो वो फिर आग स्पॉन्टेनियस पकड़ लेगा। स्पॉन्टेनियस फायर फॉरेस्ट आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक। अगर बिजली भी होती है या सूरज की रोशनी होती है तो उससे भी वो आग पकड़ लेते थे। However, the most forest fires are due to the carelessness of human beings. It is important to remember that the campfires must be completely extinguished before leaving the forest after a picnic or a visit. अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, जनरली कहीं पर पिकनिक करते हैं या फॉरेस्ट में या किसी ऐसे विस्तार में जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं या घास होता है, तो हम लोग कैंप फायर लगाते हैं रात में, राइट। और सुबह जब आगे बढ़ जाते हैं तो उस आग को कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश ख़त्म कर देना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ी सी भी कहीं आग रह गई होगी तो हवा लगेगी और तिनका उड़ के अगर किसी भी एक घास के तिनकों को पकड़ लेगा तो फिर पूरा जंगल का जंगल भी आग पकड़ लेता है। तो दिस वी हैव टू टेक केयर। वी जनरली हैव द फायरवर्क्स ऑन द फेस्टिवल डेज। कोई भी फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ तो हम लोग पटाखे जलाते हैं।
When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. तो क्या होता है, पटाखे में हीट भी जनरेट होती है, लाइट भी जनरेट होती है और धड़ाम से आवाज़ भी जनरेट होती है. और लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटर. जब भी कोई पटाखा फूट जाएगा उसके बाद एक बैड स्मेलिंग गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में भर जाएगा. सच अ रिएक्शन इज़ कॉल्ड द एक्सप्लोजन. इस तरह का जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ़ द प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन द क्रैकर. आपने छोटे बच्चों की वो टोटी आती है, पता है ना, जिसके ऊपर हल्के से पत्थर भी मारोगे ना तो भी वो फूट जाएगी, राइट. तो स्लाइट प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन द क्रैकर, इट विल ऑल्सो एक्सप्लोड. नाउ फ्लेम के कौन कौन से पार्ट हैं, राइट. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लेम? ऑब्जर्व इन एलपीजी फ्लेम. कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम? अब आपने कैंडल को भी जलते हुए देखा है और घर में किचन में गैस स्टोव को भी जलते हुए देखा है. तो दोनों में जब आग की लपटें निकलती हैं तो दोनों के कलर फ़र्क होंगे. कैंडल का जो कलर होगा वो ज़्यादातर येलो होगा और स्लाइटली ब्लू होगा, राइट. और एलपीजी गैस बर्नर जो होगा ना उसका मोस्टली जो होगा वो ब्लू कलर का होगा, थोड़ा सा येलो जैसा होगा. तो ऐसा क्यों डिफरेंस होता है? रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7. इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन द टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ. नाउ मतलब इस साल करना है, कभी भी, राइट. अभी के अभी नहीं करना है. कैंडल, मैग्नीशियम, कैम्फर, केरोसिन स्टोव या चारकोल, ये 5 चीज़ आप जला के देखो तो फ्लेम बनती है कि नहीं वो हमको नोट करना है. अगर बनती है तो कौन से कलर का बनता है ये देखना है हमें, राइट. सी हियर, वन इज येलो कलर, here and this is blue color, right. Record your observation and mention whether on burning the material forms a flame or not. तो स्ट्रक्चर क्या है फ्लेम का? लाइट ए कैंडल बट बी केयरफुल. होल्ड a 4 to 5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce its one end in the dark zone of the non-flickering candle. नॉन फ्लिकरिंग मतलब जो स्टेबल फ्लेम होती है, ऐसे हिलती जुलती जो फ्लेम होती है वो नहीं, नॉन फ्लिकरिंग. नाउ ब्रिंग द लाइटेड मैचस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब while after a while? If so, what is it that produces a flame? Notice that the wax near the heated wick melts quickly. अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कैंडल जला रखी है और एक ट्यूब इतनी लंबी हमने इसके सेंटर वाले पार्ट में लगा रखी है, राइट. और यहाँ से जो धुआं निकलेगा, राइट, वो हमको दिखेगा तो नहीं, लेकिन अगर कोई एक मैचस्टिक यहाँ पर ले आएंगे तो वो सीधी जलना शुरू हो जाएगी, राइट. When the candle flame is steady, introduce a glass plate, slide into the luminous zone of the flame, hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds and then remove it. And what do you observe? अभी देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक ग्लास स्लाइड को फ्लेम के ऊपर पकड़ा रखा है विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ टोंग्स. फिर थोड़ी देर बाद हटा लोगे तो हमें इस तरह का एक ब्लैक स्पॉट नज़र आता है, राइट. वो क्यों नज़र आता है? A circular blackish ring is formed on the glass plate or the slide. It indicates the decomposition of the unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame. अभी कार्बन पार्टिकल्स जो होंगे ना अनबर्नड होंगे, कुछ जो पूरी तरह नहीं जले होंगे, वो जोन आजू बाजू में ही होंगे उसके. होल्ड द थिंग लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन. नॉन ल्यूमिनस जोन मतलब जो जलता हुआ नहीं है उस वाला पार्ट फ्लेम का, फॉर अबाउट 30 seconds. नाउ नोट दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स द रेड हॉट.
Now, does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high temperature? In fact, this part of the flame is the hottest part. So, hottest part, moderately hot, least hot, middle of the zone combustion is yellow, and outer zone of the complete combustion is blue. Innermost zone of the unburnt wax vapors. Goldsmiths blow the outermost zone of a flame with a metallic blow pipe. अभी देखो जो सोने चांदी का काम करते हैं उनके पास एक ऐसी पाइप होती है और जहाँ से फ्लेम निकलती है वो उसमें से ब्लो एयर करते हैं तो वो डायरेक्शन दे सकते हैं फ्लेम को कहाँ पर फ्लेम देनी है, राइट? For melting of the gold and silver. And why do they use the outermost zone of the flame? और ज़्यादातर वो हवा कहाँ देंगे कि outermost zone जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, राइट? What is a fuel? फ्यूल क्या होता है, राइट? फ्यूल की क्वालिटी कैसे पता लगेगी हमें, राइट? Recall that the sources of heat energy for the domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called the fuels. A good fuel is one which is readily available, it is cheap, it burns easily in the air at the moderate rate, and it produces a large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substance. देखो ये good quality of fuel की है, कौन सी होती है कि इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, उसमें से बहुत गर्मी पैदा हो सकती है। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, वो जल जाने के बाद कोई भी नुकसान करता हो ऐसा कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस उसके बाद नहीं रहेगा जल जाने के बाद। दिस इज़ प्रॉबेबली and there is probably no fuel that would be considered as an ideal fuel. तो ऐसा तो कोई फ्यूल है ही नहीं है, right? So we should look for a fuel which fulfills most of the requirements for a particular use. तो ऐसा तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा फ्यूल ढूंढना पड़ेगा जो कम से कम नुकसान करने वाले प्रोडक्ट पैदा करता हो या हीट जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता हो। फ्यूल्स डिफ़र इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन दी अदर। अभी देखो सबसे सस्ता वाला जो है वो है केरोसिन। अभी आपने एक रिसेंटली देखा होगा कि अब तक का ये हिस्ट्री रहा था कि पेट्रोल हमेशा डीजल से महंगा होता था, राइट? लेकिन इसी साल हमने ये भी देखा कि डीज़ल जो है वो पेट्रोल से भी महंगा हो गया था, राइट? सो अलग अलग किस्म के फ्यूल होते हैं हमारे आजू बाजू। कुछ लोग एलपीजी भी यूज़ करते हैं, सीएनजी गैस जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं हम, राइट? क्योंकि वो लेस पोल्यूशन करता है, राइट? और ज़्यादातर हवा हमको एटमॉस्फेयर में से मिल भी जाता है। सो मेक ए लिस्ट ऑफ द फ्यूल सिमिलर टू यू, ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो फ्यूल्स तो तीनों प्रकार के हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल की ताकत और फ्यूल हमें कितना किफ़ायती पड़ता है, वो कितना सक्षम है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो सपोज़ यू आर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग ए काउ डंग, coal and LPG as fuels, which fuel would you prefer? Give your reason. You must take the help of your parent also. And do these three fuels produce the same amount of heat? The amount of heat energy produced on the complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value. The calorific value is a fuel is expressed in a unit of कॉल्ड द किलो जूल पर केजी। 1 किलो हमने कोई सामान लिया जो जल सकता है, ज्वलनशील पदार्थ हमने 1 किलो लिया, उसमें से कितनी हीट निकलती है, दैट इज़ नोन एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, राइट? सो कैलोरीफिक वैल्यू किसी चीज़ की दी हुई है यहाँ पर टेबल में। काऊ डंग जो है वो 1 किलो में 6000 से 8000 किलो जूल ऑफ हीट देता है। वुड 17000 से 22000 देता है। तो अभी
काऊ डंग जलाओगे कि कोई लकड़ा जलाओगे? ऑब्वियसली लकड़ा। फिर कोयला जलाओगे तो 25,000 से 33,000 मिलेगी। पेट्रोल जलाएंगे तो 45,000 मिलेगी। केरोसिन में भी इतना, डीजल में भी उतना ही, मीथेन में 5,000, सीएनजी में 5,000, एलपीजी में 55,000, बायोगैस में 35,000 और हाइड्रोजन में 1,50,000। तो सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी हमको हाइड्रोजन फ्यूल से मिलती है। तभी तो हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो मिसाइल्स और रॉकेट्स में यूज़ किया जाता है। नाउ बर्निंग ऑफ ए फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ये तो कोई भी आप मानते ही हो कि कोई भी फ्यूल जलाओ आप, राइट, उसमें से जहरीला धुआं तो निकलेगा ही निकलेगा। सो कार्बन फ्यूल्स लाइक द वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन। कितनी भी आग दो, कुछ तो कार्बन जो है वो जलेगा नहीं और बच जाएगा। दिस इज नॉन एज अनबर्न्ड कार्बन। For centuries, wood was used as a domestic and industrial fuel, but now it has been replaced by the coal and other fuels like LPG. In many rural parts of our country, people still use wood as a fuel because of its easily availability and low cost. However, burning of the wood gives a lot of smoke, which is very harmful for the human beings. It causes the respiratory problem. Also, trees provides us with the useful substances which are lost when wood is used as a fuel. So moreover, cutting of trees leads to deforestation, which is quite harmful to the environment, as you have learned in class 7. अभी देखो, अब तक हम लोग और जहाँ पर भी लोग देखोगे तो लकड़ी को जलाते थे, राइट, ईंधन के लिए। क्यों? क्योंकि वो सस्ती होती है और आसानी से मिल जाती है हमको। लेकिन अगर हमने पेड़ काटे हैं तो एक तो हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन, जंगल ख़त्म होते जाएंगे तो एनवायरनमेंट के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट करेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और बारिश कम हो जाएगी अगर पेड़ नहीं होंगे तो। और ऊपर से दूसरे पक्षी हैं और जानवर हैं, उनका खाना और रहना करना भी ख़तरे में आ जाएगा अगर पेड़ कम हो जाएंगे तो। ऊपर से जब हम लकड़ी जलाते हैं तो उसमें से बहुत सारा अनबर्न्ड कार्बन होता है। जो अनबर्न्ड कार्बन होता है वो नेचर में फैल जाता है, एनवायरनमेंट को भी पोल्यूशन करता है। इसीलिए अभी हम लोग जो है वो कोयला यूज़ करते हैं या एलपीजी यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन कोई भी फ्यूल जलाओगे तो ऑब्वियसली उसमें से निकलेगा ही निकलेगा। These fine particles are dangerous and pollutes the respiratory disease such as asthma. In incomplete combustion of these fuels gives कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इट इज़ ए वेरी पॉइजनस गैस। कभी कभी आप देखना कहीं पर भी आग लगी होगी, कोई फंस गया होगा उसमें आग में, तो जब वो धुआं, अनबर्न्ड कार्बन का धुआं उसके सांस में चला जाता है तो वो उसको अनकॉन्शियस, बेहोश कर देता है। और आदमी जब बेहोश हो जाता है तो कभी कभी आपकी लपटों में जल के भी मर सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है और वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कैन किल द पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर कहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड जल रहा है और कोई आदमी सो रहा है और वो उसकी सांस में चला गया तो आदमी भी मर सकता है। सो दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन ए रूम विद द बर्निंग और ए स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट। तो जहाँ पर भी कोयला जलता हो उस रूम को एकदम बंद करके नहीं सोना चाहिए, चाहे कितनी भी ठंडी हो। ठंडी से हम मरेंगे नहीं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हमको मार सकता है। Combustion of most fuels releases carbon dioxide in the environment, and increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause the global warming. जैसे मैंने बोला ना, अभी दुनिया का टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है because of this. Global warming is the rise in the temperature of the atmosphere of the earth. This results among the other things in the melting of the polar glaciers, which leads to rise in the sea level, causing the floods in the coastal areas, and low-lying coastal areas may even be permanently submerged under the water. अभी होता क्या है कि जब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग फेस करते हैं तो टेम्परेचर तो हमको पता है कि पूरी पृथ्वी का बढ़ जाएगा, और पोलर रीजन्स जहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ जमी हुई है, तो जब गर्मी बढ़ेगी तो वो बर्फ़ पिघल के बहना शुरू हो जाएगा और वो बह के जाएगी सीधी कहाँ पर? समुंदर में। तो समुंदर की एक कैपेसिटी है, अगर ज़्यादा पानी उसके अंदर आए तो वो पानी बाहर फेंक देगा। तो जो लोग समुंदर किनारे रहते हैं वो सब बह जाएंगे वो पानी में, राइट, बाढ़ आएगी तो।
तो लो लाइंग एरिया जो है वो हमेशा के लिए डूब भी सकता है पानी के, कभी कभी वहाँ पर समुंदर नहीं था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुंदर ने अपनी हदें बढ़ा दी और वहाँ का जो एरिया था वो अभी परमानेंटली समुंदर वाला हो गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग का। बर्निंग ऑफ द कोल एंड डीजल रिलीजेस द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस. Moreover, the petrol engine gives off gaseous oxides of nitrogen. तो चाहे हम लोग पेट्रोल जलाएं या डीजल जलाएं, उसमें से सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस निकलता है, राइट. सो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व्स इन द रेन वाटर एंड फॉर्म्स एन एसिड. तो जब भी हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उसमें से धुआं जो निकलता है वो धुआं तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर में जमा ही रह जाता है, और बारिश की सीज़न में जब वो पानी आता है तो पानी में मिल जाने के बाद वो एसिड रेन हो जाता है, राइट. तो वो जो है वो हमारे सबको, वेजिटेशन को, इंसानों को, जानवरों को, सबको नुकसान पहुंचाता है. बिल्डिंग्स को, इवन बिल्डिंग्स जो होती हैं हमारी, उसको भी ख़राब कर देता है. इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल. You have learned about this in class 7 also. The use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by the CNG. अभी क्या कर रहे हैं कि हर जगह पर गैस स्टेशन यानी कि CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस लगाया जाता है. क्यों? क्योंकि वो बिकॉज द CNG प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट, राइट. उसमें भी हार्मफुल सब्सटेंस निकलते लेकिन बहुत ही कम मात्रा में निकलते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं क्लियर फ्यूल. CNG का दूसरा नाम है क्लियर फ्यूल. और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा ये यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है लास्ट पेज पे, राइट. मोस्टली मोटा मोटा हम देख लें तो एसिड रेन क्या होता है अभी हमने बताया, फिर क्लोरिफिक वैल्यू क्या होती है, फिर कंबस्टन किसको बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन किसको बोलते हैं, एक्सप्लोजन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल की एफिशिएंसी कैसे मेज़र करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, आइडियल फ्यूल हम किसको बोल सकते हैं, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होती हैं. ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर कर ली. क्वेश्चन आंसर तो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं. ये चैप्टर यहाँ पूरा हुआ. कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.